Hello students, welcome to Europedia Education. I am Jitendra Tyagi and I am here to share a very important, very good news for all of you. Those are in the preparation mode for different competitive examination. As all of you know that there are a lot of vacancies in ATC, Air Traffic Control Exam. Okay, so for the post of junior executive, 400 around vacancies are there, and this is a very good number. So very good opportunity for all the students who are in touch with the study, okay, who are preparing for from last year or from 2 or 3 years or 4 years, and whose age limit is below 27. Okay, this is a very good opportunity for all such students. Now in this video what I am going to share, I am going to analyze the question paper of 2021 ATC exam junior executive post. Okay, and in that the most important section, that was mathematics and physics. Okay, so I am going to discuss some important information regarding that. Okay, 21 का जो हमारा पेपर हुआ है ATC का, that is our reference here, उसको हम reference लेंगे, and उसमें physics और mathematics का जो एक large number है, means 60 questions you get from physics and math combinedly. Okay, so उसमें which topics are important, okay, that I am going to discuss. So last year there was some interesting thing, okay, and some unexpected things last year happened when this exam was conducted. So I will also share those moments, those things which happened during the last year. Okay, now first of all let us come. So I have taken two different sets from ATC 2021, and what were the important topics from where we got the questions, those questions, the number of questions I am going to share, right. So let us see. First of all we will talk about mathematics. So I have taken two sets, okay, from that from those two sets we can easily get the idea. So from set number 1, if we take the topics, these were the topics from where they asked the questions. Okay, so 3-dimensional geometry, all of you study 3-dimensional geometry in your 11th as well as 12th class. So the level of these questions was from 11th and 12th, basic level questions were there. Okay, and there were 7 questions. You know, 3D is a very important topic and relevant topic to the entire working of ATC. Okay, ATC में अगर आपको काम करना है, so you should have knowledge of different coordinate system, different 3-dimensional space system, about the plane, about the coordinates, distance between two planes, different things are there. Okay, and about the line in the 3-dimensional space. So obviously this is important topic, 3-dimensional geometry. So in one set there were 7 questions, and all questions were up to 12th class level and very basic questions. Okay, and in set number 2 there were 5 questions. So on an average 6 questions we can say from one topic, 3-dimensional geometry, a very important topic for this year exam also. Okay, because ये relevant है to the functioning of ATC. Okay, then probability theory. In both the sets there were 7 questions, some basic questions, some conceptual questions. Okay, so if you study probability completely in well manner, all the questions can be answered. Level of the question was such that you can answer. Okay, and if you are from a BTech background and you have prepared for some other competitive exam and you have studied engineering mathematics also, obviously you have prepared this probability. So these 7 questions are in hand for all the students who are from engineering background. Okay, and those who are not from engineering background, they can also prepare these 7 questions of probability, because interesting topic is that, and easy topic is that. If you read once carefully, you can solve the problems. Okay, now another topic is permutation and combination. Okay, so generally we study probability and permutation combination together. So we have separated the two, and 5 questions in one set, 4 questions in another set. So if we combine these two, we can see that 12 questions from probability and permutation combination were there, 11 questions in another set from probability and permutation combination were there. So these two are the most important topic we can say for our exam, this exam. Okay, and then from vectors, basic concepts of vectors which we study in 12th class.
Okay, so level was again of 12th class, right? So there were 4 questions in one set, 6 questions in another set, and then there were some simple questions from trigonometry. Okay, some basic question like the value of an angle in degree if it is given in radian, or degree to radian conversion. Okay, a circle is given, radius is given, center angle is given, arc length to be computed, such type of basic questions about the solution of some equation like 10x equal to 3/2, number of real solutions, principal solutions. Okay, quite basic level questions. So trigonometry we study in 11th class or 10th class, that is sufficient. Okay, if you completely study the basic concepts of trigonometry, you are able to solve all the questions. So these are the topics from 2021. Okay, so in one set there were 28 questions from mathematics and 32 questions from physics section. Okay, generally we divide in two cases, means 30 questions from mathematics, 30 questions from physics, but there were in one set 28 questions from mathematics and 32 questions from physics, because 2 questions in mathematics side were such that they can be considered in mechanics actually. Okay, velocity, acceleration related problems were there. So we can say 28, 32 questions, right? Or simply we can generally say 30, 30, 50, 50 roughly, right? And in another set also, okay, the same 2 questions in these 30 questions of mathematics were from mechanics part, or based on acceleration, velocity, such things, right? So this is the analysis of mathematics section from the paper of 2021. Okay, now let us discuss about physics also. So what are the important topics from where they ask questions in physics? So we have divided physics into some chapters. The most important is electricity and magnetism. Okay, from basic concepts of electricity and magnetism, there were 15 questions. Okay, 50% question of physics were from electricity and magnetism. Okay, so this is edge for all the students who are from electronics and communication, electrical engineering or instrumentation engineering background. All of you study network theory. Okay, so most of the questions are can be solved using network theory, and some basic 12th class electricity you have to study, right? You can solve the problems. Level is of 12th standard, 12th class, right? Then there were questions from mechanics, 10 question in one set, 12 question in another set. Okay, so it is also from 11th and 12th standard. Okay, 11th class में हम mechanics पढ़ते हैं, वही standard था questions का, और वहीं से general basic questions सारे इन्होंने pick किए हुए थे, right? Thermodynamics से only 2 questions were there in both the sets. Then optics 4 and 3. Then semiconductor physics mainly logic gate. Okay, 1 question in this, and there were 1 question in this also, right? Here you have to write 1 also. In both the sets there was 1 question from logic gate. Okay, and from communication in this set there was no question, but in another set there were 2 basic questions, right? We can put in the category of communication or general common sense question were there. Okay, so these are the main topics of this physics section, right? ये आपको फिजिक्स वाले टॉपिक्स है हमारे. अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अब देखो लास्ट ईयर क्या हुआ, पूरा सीन जो था ना लास्ट ईयर वाला वो थोड़ा स्ट्रेंज था, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड था, और बच्चों के साथ में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कई बच्चे उस जो सिस्टम लास्ट ईयर हुआ they were not happy with that. Okay, at the end of the exam, and many were very happy. So क्या हुआ था कि ATC का नोटिफिकेशन आया. अब जो प्रीवियस ईयर में उनका जो क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न था दैट वाज एंटायरली डिफरेंट. जैसे 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था या उसके पहले जो आया था, तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे सबका रेफरेंस वही रहा कि भाई पहले जो आया था कभी 18 में, 14 में या उससे पहले जब भी एग्जाम हुआ, तो वो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग टॉपिक्स से थे, डिफरेंट टॉपिक्स से, जिसमें मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन थे, कैलकुलस के अंदर से क्वेश्चन उन्होंने पिक किए थे, टेलर सीरीज से क्वेश्चन पिक किए थे. तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्चुअली मेनली वाज देयर. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पहले आते थे एग्जाम में. ओके, अब ATC ने कोई सिलेबस उन्होंने अनाउंस किया नहीं था एग्जाम का, जैसे अभी तक भी सिलेबस तो उन्होंने अनाउंस किया नहीं है. और बच्चों ने जो तैयारी करना स्टार्ट किया या जो भी टीचर्स थे जिन्होंने ये टीच करना स्टार्ट किया, उन्होंने तो उसी को रेफरेंस माना और उन्होंने वो सारा कंटेंट अलग अलग सभी लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया. अब बीच में क्या हुआ कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ATC की वेबसाइट पे 1 या 2 दिन के लिए
सिलेबस अनाउंस किया। वो सिलेबस जो था उसमें उन्होंने मेन टॉपिक्स जो लिखे वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, यही टॉपिक उन्होंने मेंशन किए थे सिलेबस की फॉर्म में ऑन द वेबसाइट। ओके, बट वो केवल 1 या 2 दिन रहे वेबसाइट पे और उसके बाद वो उन्होंने रिमूव कर दिए, एटीसी की तरफ से वो रिमूव कर लिया गया, विड्रॉन कर लिया गया। और देन देयर वाज नो नोटिफिकेशन अबाउट द सिलेबस कि क्या सिलेबस रहेगा। उन्होंने फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, 1 दिन के लिए वो या 2 दिन के लिए रहा वेबसाइट के ऊपर, फिर रिमूव कर लिया। अब उसको जिसने पढ़ा, जिस बच्चे ने उसको देखा, तो उसने तैयारी तो की हुई थी सारे टॉपिक्स की, क्योंकि अलग अलग टॉपिक बहुत सारे जो पहले आते थे उनके हिसाब से उसने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हुए थे। अब वहाँ सिलेबस देखा कि यार ये तो लिमिटेड सिलेबस है, यही टॉपिक है मेनली, ठीक है, लेकिन वो बाद में रिमूव कर लिया और कुछ क्लैरिटी उसके बारे में आई नहीं एटीसी की तरफ से। तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में रहे। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने उन टॉपिक्स को ही फोकस किया, उन्होंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, रिस्क ले लिया, आगे की टॉपिक उन्होंने स्किप किए, उन पे ज़्यादा मेहनत कर ली, ठीक। अब एग्ज़ाम जो हुआ उसका एटीसी का, तो वहाँ पे मैक्सिमम मीन्स ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन वर फ्रॉम द सिलेबस जो उन्होंने अनाउंस किया था और विदड्रॉ कर लिया था बाद में, ठीक है। तो ये स्टोरी थी जो पहले हुई है 2001, ये जो आपका एटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे। तो ये टॉपिक हैं, ये रेलिवेंट है मेरे हिसाब से भी। अगर मैं देखता हूँ तो जो भी टॉपिक्स हमने, जैसे मैथमेटिक्स के टॉपिक में बात करता हूँ, तो सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, रेलिवेंट है। मीन्स जैसे 3D और वेक्टर है ना, ये तो आपका एटीसी के उससे मैच करता है, प्रोफाइल से मैच करता है। तो हो सकता है कि अभी जो अगला ये एग्ज़ाम होगा इसमें ज़्यादा चांस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के हैं कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और अगर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है अबाउट द सिलेबस, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी यू कैन गिव टू दिस सिलेबस, ठीक है ना, क्योंकि जो रेफरेंस, अगर वो खुद भी रेफरेंस लेंगे तो जो लेटेस्ट पेपर होता है उसके हिसाब से लेंगे या तो वो, ठीक है ना, अदरवाइज अनाउंस करेंगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक। इन एडिशन टू दिस टॉपिक्स इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप रिवाइज करोगे जो रिमेनिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं। एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो गेट की तैयारी किए हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके तो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको सबको रिवाइज करके रखना है। जैसे उनको क्या क्या टॉपिक्स मेनली अगर एडिशनल में रिवाइज करने हैं, जहाँ से अगर प्रीवियस पैटर्न पे ये जाएंगे और उन क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन पिक करेंगे, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा है आपका, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, दैट यू कैन प्रिपेयर। उसके अलावा कैलकुलस से मिल सकता है, जिसमें वेक्टर कैलकुलस एज वेल एज सिंपल कैलकुलस, दोनों कैलकुलस के पार्ट, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल भी है आपका, ठीक है ना, एरिया ऑफ प्लेन रीजन भी है, और उसके बाद आपका वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट जो होता है दैट इज आल्सो देयर। तो पूरा कैलकुलस जो है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पुराने पैटर्न पे गए, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल एज वेल एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि पहले उनसे क्वेश्चन आते थे, तो फिर से हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लें। ये टॉपिक्स आप गेट के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो, तो इनको रिवाइज करके रख सकते हो आप, ठीक। और उसके अलावा टेलर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पहले बने हुए हैं कई बार, ठीक है। और न्यूमेरिकल मेथड से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे न्यूटन एप्सन मेथड हुआ या और भी डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड है। वो पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था पहले उसको रेफरेंस लिया जाता था, बट लास्ट ईयर स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, लास्ट ईयर का सिलेबस एंटायरली डिफरेंट था, ठीक है ना। तो आपको अब जो फोकस करना है ज़्यादा वो इस लास्ट लेटेस्ट सिलेबस जो उन्होंने दिया था उसके हिसाब से तैयारी करनी है, बट साइड बाय साइड जो पुराना है उसको भी प्रिपेयर आप धीरे धीरे करते रहो कि अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो आप सोल्व कर पाओगे, ओके। और सेम तरीके से जो फिजिक्स में टॉपिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक्स आपको सारे प्रिपेयर करके रखने हैं। और ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल आसान होता है। वंस यू स्टडी ऑल द टॉपिक्स यू कैन सोल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम कम मिलेगा, तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ईजी लेवल का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन मैंने भी देखा था वहाँ पे कि एक लाइन को यूनिकली डिटरमिन करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, कितने पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो एक लाइन को डिसाइड करने के लिए हमें यूनिकली कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, एक यूनिक लाइन पास हो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, सिंपल, तो हमें 2 पे टिक करना है। इस लेवल के क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, ठीक है ना। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। एंड ये आपको नहीं सोचना कि ये अलग से है, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ये मैथ 11-12 का मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आप किसी और तैयारी में लगे हुए हैं,
थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अगर इसमें एलिजिबल है और अप्लाई करेंगे आप, तो थोड़ा सा ही टाइम चाहिए आपको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आसान है, एक बार बस आपको स्टडी करनी है, भूलोगे नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप स्कोर कर सकते हो। ओके, अब यूरोपीडिया की तरफ से डिफरेंट मॉड्यूल्स हम लॉन्च करते हैं यहाँ पे, और वो सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उनको जल्दी मतलब जो भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों उस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। सो फॉर दिस एग्ज़ाम आल्सो, एटीसी के एग्ज़ाम के लिए भी यूरोपीडिया ने अपना मॉड्यूल लॉन्च करना है। तो आपको ये जो गूगल फॉर्म यहाँ पे लिंक में मिलेगा, ये लिंक आप भरोगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, और आप चाहते हैं कि एटीसी में आपका सिलेक्शन हो, तो आप इस गूगल फॉर्म को भरो, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द मॉड्यूल कि किस तरीके से प्रोसीजर आगे का रहेगा बाय यूरोपीडिया एजुकेशन। जो भी मॉड्यूल है वो कैसे रन किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। लाइव क्लास के थ्रू पूरा कवरेज किस तरीके से, सारा ऑप्टिमम वे में आपको सिलेबस मतलब आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो और मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो वैसा कुछ पॉलिसी बना के आपके साथ वो शेयर की जाएगी, ठीक है ना। और आप उसमें फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और जो भी क्वेरीज हैं आप गूगल फॉर्म भरिए, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं यूरोपीडिया के, और वो आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। ओके, लेकिन एग्ज़ाम सबको देना चाहिए जो भी एलिजिबल है, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। एक एक अपॉर्चुनिटी लाइफ की इंपॉर्टेंट होती है, तो एग्ज़ाम को सबको, जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, लिमिटेड वैकेंसी आती हैं और फ्रिक्वेंटली भी नहीं आती है, तो अगर आ रही है उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। और सिलेबस जो भी आप जितना भी पढ़ सकते हो, आप एग्ज़ाम जरूर मतलब ये लिखना है, सभी बच्चों को मेरा सजेशन है। अगर एलिजिबल ही नहीं हो तब तो आप नहीं लिख सकते। ओके, और दूसरा, जो पहले भी हमने ये मॉड्यूल लॉन्च किया है, मतलब रन कर चुके हैं सक्सेसफुली, और उसमें भी काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था, और कई बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो जल्दी ही आपको उनके इंटरेक्शन, जैसे डेली हम जो अलग अलग IITs में, डिफरेंट PSUs में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो उन बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन हम कराते हैं। तो जल्दी ही आपको ATC के जो पुराने बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें, उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो उसका भी प्लान करेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसीजर अपना यूरोपीडिया का मॉड्यूल के बारे में बता देंगे कि वो कैसे रन करेंगे मॉड्यूल को, और जिसमें पूरा आपका मतलब 100% सारा सिलेबस कवर हो जाए, और उससे एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल जाए जो रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के लिए, जिसमें रीजनिंग का पार्ट भी आएगा, ठीक है ना, GS का पार्ट भी आएगा, और आपका मतलब अलग अलग जगह पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मैथमेटिक्स यहाँ से जाके पढ़ना है, फिजिक्स वहाँ पे जाके इकट्ठा करना है, सब कुछ एक ही जगह पे एक पॉइंट पे आपको मिलेगा। और जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यूरोपीडिया के किसी मॉड्यूल में, उनके लिए स्पेशल कुछ अलग से वो भी रहेगा, मतलब वो आप बात कर सकते हैं। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।